की 200 अगेन अच्छा, नमस्कार मित्रों। भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में पिछले 6 वर्षों से नियमित रूप से संचालित की जा रही हमारे इस वेबिनार श्रृंखला के 230वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और कार्यक्रम को शुरू करने के पहले वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चित नाम हिमांशु व्यास जी हमारे साथ हैं और उनके फोटोग्राफी के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के बारे में हम अभी बात करेंगे और उनको सुनेंगे। लेकिन इसके पूर्व, जैसे हमारी परंपरा है, वेबिनार को शुरू करने के पहले एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति सरस्वती वंदना की अनुरोध प्रियंका जी से वे सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। जैसा कि आप सबको विदित है, उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और अब भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर के साथ साथ जनसंपर्क संबंधी कार्यों को भी देख रही हैं। और शिक्षण में आने के पहले वो आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती रही हैं। रेडियो आपका विशेषज्ञता का क्षेत्र और उसी पर आप पीएचडी के लिए पंजीकृत। अनुरोध सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के लिए प्रियंका जी। Sir, so before we begin, let's remember Ma Saraswati for this one. शक्ति हमें दे विश्वास कमजोर, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण। फूल खुशियों की बाटे सभी को, सबका जीवन अब बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी हो ना। This is my privilege to welcome you all on our 230 session of media webinar on the theme Beyond the Lens, Photography as a Powerful Communication Tool. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 30-year-old bilingual media quarterly journal, considered as a lighthouse of media professional, and Bharatiya Vidyapeeth Institute of Computer Application and Management, which is a 60-year-old institution, have hands joined together to organize this media lecture series in online. So, respected dignitaries, faculty members, students, and all my friends, a warm welcome to all of you in our 230th webinar. So, today the theme talks about lens photography as a powerful communication tool. In today's visual age, photography goes far beyond capturing image. It tells story, it captures emotions, it shapes perception, it influences opinion, and of course, it communicates message that words sometimes cannot. From photojournalism to branding, from social movements to digital storytelling, the camera has become one of the most powerful tools of communication. A photograph does not merely record what we see. It can communicate an idea, evoke an emotion, document an event, challenge perception, and tell a story without speaking a single word. So, nearly 2 centuries later, photography has evolved from chemical portal plates to digital cameras, smartphones, social media journalism, photojournalism, advertising, documentary, photography, and visual storytelling. Yet, its fundamental purpose remained remarkably similar: to communicate through images. A photograph can bring distant reality closer to us. A single image can document a historical movement, highlight social injustice, perceive social and cultural heritage as well, promote a brand, create a public awareness, or capture a deeply and personal human experience. So we are going to discuss more about this. This is particularly significant in today's digital environment where visual communication has become central to journalism, education, marketing, entertainment, and social media.
The camera is no longer simply a device for taking pictures. It has become an instrument to communicate, to interpret, and to influence people. So to explore this fascinating dimension of media, we have with us eminent speaker, Shri Himanshu Vyas, sir, ex-adjunct professor of photojournalism, HJU Jaipur, visiting faculty SIMC Pune and IMC Delhi. सर के बारे में जितना बोलो कम है. सर, we are really honored to have you on this platform, and over to you, Barawa sir. Thank you so much. बहुत बहुत आभार आपका. क्योंकि आभासी मंच पे आयोजन, स्वागत, अभिनंदन की परंपरा भी हम निभा रहे हैं, उसी आभासी तरीके से एक बार फिर अनुरोध है प्रियंका जी से, ई बुके से आज के हमारे मुख्य वक्ता हिमांशु जी का स्वागत, अभिनंदन करें. जी सर, बिल्कुल. Okay, so to this e-bouquet we have the message कि जिस तरीके से ये e-bouquet हमेशा खुशियां स्प्रेड करता है, ये जो फूल है वो हमेशा खुशियां स्प्रेड करती है, इसकी जो सुगंध है वो हमारी लाइफ में एक ऐड ऑन करते हैं. उसी तरीके से हम हमेशा फ्रेश रहें, क्रिएटिव रहें और इसी तरीके से हर एरिया को, हर जगह को खुशबूदार बनाए रखें और महकाते रहें अपनी खुशियों से, अपने थॉट से, अपनी क्रिएटिविटी. शुक्रिया. थैंक यू प्रियंका जी. मोस्ट वेलकम सर. चलिए, हमारा भी एक छोटा सा उद्देश्य, जिस जाते हैं तो जो खुशी का एहसास होता है, जो उल्लास की अनुभूति होती है, हमारा भी एक छोटा सा प्रयास, जैसा मैंने कहा पिछले 6 वर्षों से, कि मीडिया संबंधी विषयों पर विचार मंथन की शुरुआत करें और इसके माध्यम से जिस तरह से पुष्पों की खुशबू होती है, वैसे ही देश जो हमारी भाषा समझ सकने में सक्षम है, उनके माध्यम एक को अलग जगा सकें, एक ज्ञान ज्वलित कर सकें. यह हमारी विचार यात्रा, ज्ञान यात्रा आज 230वें एपिसोड तक पहुंच चुकी है और लगभग 500 से अधिक स्पीकर्स हमारे साथ अब तक जुड़ चुके हैं और ये सारे डेलिब्रेशन, सारी चर्चाएं रिकॉर्ड करके हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं. आप जब आप चाहें इन्हें सुन सकते हैं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं. जैसा बताया गया, आज हिमांशु जी हमसे बात करेंगे. इनका विस्तृत परिचय भी मैं आपको दूंगा. विषय बियॉन्ड द लेंस, फोटोग्राफी एज ए पावरफुल कम्युनिकेशन टूल. लेंस के पार संचार के सशक्त माध्यम के रूप में फोटोग्राफी. 19 अगस्त हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस हम मनाते हैं. यह अवसर 19 अगस्त का हमें ये समझने का एक मौका देता है कि फोटोग्राफी केवल सुंदर दृश्यों को कैमरे में कैद करने की कला नहीं है, बल्कि विचारों, भावनाओं और सामाजिक वास्तविकताओं को अभिव्यक्त करने की एक शाश्वत भाषा है. दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति बैठा है, किसी भी भाषा को जानने वाला है, लेकिन फोटोग्राफी की एक ऐसी वैश्विक भाषा है जिसे हम देखते ही समझ सकने में सक्षम हैं. शब्दों की अपनी सीमाएं हो सकती हैं, उनके अपने लिमिटेशंस हैं, लेकिन एक प्रभावी फोटो, तस्वीर या चित्र भाषा, संस्कृति और भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर के सीधे हमारी संवेदनाओं को कहीं स्पर्श करने की कोशिश करता है. विश्व फोटोग्राफी दिवस का ऐतिहासिक संबंध डेग्रेवटाइप प्रक्रिया से है. फ्रांसीसी एक आविष्कारक थे, लुई डेगर, उन्होंने इस प्रक्रिया को विकसित किया. 7 जनवरी 1839 को फ्रांसीसी विज्ञान अकादमी के समक्ष उसे प्रस्तुत किया गया और इसके बाद 19 अगस्त 1839 को इस तकनीक की जानकारी को पब्लिक किया गया, सार्वजनिक किया गया. फ्रांस की सरकार ने इसे मानवता के उपयोग के लिए, कि सभी लोग इसका उपयोग कर पाए, इसके लिए इन्होंने इस जो प्रक्रिया है इसको विश्व के लिए उपलब्ध करा दिया. किसी प्रकार की कॉपीराइट की कोई समस्या नहीं आई. तो इस घटना ने फोटोग्राफी को प्रयोगशाला से निकाल करके एक तरह से वैश्विक बना दिया. सभी के लिए यह सर्वसुलभ हो गया. ये एक महत्वपूर्ण भूमिका एक तरह से फोटोग्राफी की शुरुआत आप मान सकते हैं. फोटोग्राफी का सबसे बड़ा जो उसका गुण है वो है उसकी विजुअल क्रेडिबिलिटी.
दृश्य, विश्वसनीयता और उसका जो तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, गरीबी, विस्थापन, सामाजिक संघर्ष, मानवीय पीड़ा, मानवीय जीवन के विविध पक्ष, उनकी जो तस्वीरें हैं, चित्र हैं, उन्होंने पूरे वैश्विक जो जनमत है उसे कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। एक अकेली तस्वीर वो बात कह सकने में सक्षम है जो शायद आप बहुत बड़े बड़े भाषणों या रिपोर्ट के माध्यम से नहीं कह सकते। ये जो दृष्टि है कैमरे की, वो एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि इतिहास का साक्षी और समाज की स्मृतियों को संजोने का एक अद्भुत माध्यम है। पत्रकारिता में फोटोग्राफी सत्य को एक तरह से विजुअल, उसका सर्टिफिकेशन, दृश्यात्मक प्रमाण जो है वो उसे एक तरह से प्रदान करती है। एक उत्तरदायी फोटोग्राफर घटना को केवल दर्ज नहीं करता, बल्कि उसे मानवीय और सामाजिक संदर्भों के साथ भी जोड़ने की कोशिश करता है। उसकी तस्वीर सत्ता से सवाल कर सकती है, उपेक्षित समुदायों की आवाज बन सकती है और समाज में कहीं उन संवेदनाओं को वो छूने की कोशिश करती है। उसके बहुत व्यापक क्षेत्र हैं जिसकी चर्चा हिमांशु जी करेंगे अपने। और जैसा प्रियंका जी ने कहा कि हम किस तरह से डिजिटल दौर में पहुंच गए हैं और स्मार्टफोन ने फोटोग्राफी का एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया है, लोकतांत्रिकरण कर दिया है। हर व्यक्ति के पास कैमरा है मोबाइल के माध्यम से, तो एक प्रकार से विजुअल कॉरेस्पॉन्डेंट है। सिटीजन जर्नलिज्म के माध्यम से भी हर व्यक्ति उन घटनाओं को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है जो उसकी आंखों के आगे से गुजरती हैं। और कई बार मुख्य धारा की मीडिया से जो चीज छूट जाती है उसे आम व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी पैनी नजर से पकड़ने की जो कोशिश करता है, उससे वो संभव होता है कि उन क्षणों को भी हम कैद कर लेते हैं। सोशल मीडिया की तस्वीरों की पहुंच और उसके प्रभाव में अनायास बहुत अधिक वृद्धि हुई है, लेकिन कई बार इसके साथ चैलेंजेस भी हैं कि संदर्भ ठीक नहीं है, या जो हमारी प्राइवेसी है उसके साथ छेड़छाड़, या गलत या भ्रामक चित्रों को किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। कृत्रिम बौद्धिकता, डीप फेक के दौर में फोटोग्राफी की प्रामाणिकता, नैतिकता और विश्वसनीयता पर नए प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं। इसीलिए फोटोग्राफर की जिम्मेदारी केवल आकर्षक तस्वीर लेना नहीं, बल्कि सत्य, मानवीय गरिमा, सहमति और संवेदनशीलता का सम्मान भी करना है। आजकल हम देख रहे हैं, किसी राजनीतिक दल का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन किस तरह से हमारे जो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं उनकी तस्वीरों के साथ किस तरह से खिलवाड़ करके इतिहास के साथ भी कई बार खिलवाड़ करने की या विकृत करने की जो कोशिश है वो की जाती है। आप हम सब इनको देखते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर कैमरे से लेंस के आगे देखने की हमको एक प्रेरणा देता है। एक सार्थक तस्वीर केवल यह नहीं बताती है कि हमारे सामने क्या है, वह यह भी समझाती है कि उसके पीछे कौन सी कहानी, भावना और सामाजिक सच्चाइयां छिपी हुई है। वास्तव में फोटोग्राफी वो भाषा है जो दुनिया को दिखाने के साथ साथ उसे समझने और बदलने का भी एक सामर्थ्य रखती है, ताकत रखती है। आइए हम चर्चा करते हैं हिमांशु जी से, जिनके व्यक्तित्व में बहुत सारे पक्ष समाये हुए हैं। वो फोटो पत्रकार हैं, वो शिक्षक हैं, वो फिल्मकार हैं और वो कवि हैं, हाइकू कवि विशेष रूप से। ये साहित्य की एक नई धारा है, नई तो क्या, अब तो काफी पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी सामान्य जन के लिए हम कह सकते हैं एक दौर था जब हंसिकाएं क्षणिकाएं आती थी, आजकल हाइकू का दौर आ गया है, बहुत छोटे छोटे शब्दों के अंदर अपनी बात कह दी जाए। जोधपुर राजस्थान में आपका जन्म हुआ और जैसा मैंने कहा कि आपने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है और काम कर रहे हैं। भारत के जो एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है रामनाथ गोयनका अवार्ड, उसका जो प्रेस फोटो का अवार्ड है, उससे आप 2 बार सम्मानित हो चुके हैं। लगभग 2 दशक से अधिक का समय आपने अपना हिंदुस्तान टाइम्स को दिया और वहां से चीफ फोटोग्राफर मल्टीमीडिया के पद से आपने विदाई ली। विदाई का कारण भी था कि जयपुर में आपसे हिंदुस्तान टाइम्स का जो एडिशन था वो बंद हो गया, तो वहां से फिर आपने भी छोड़ दिया। वर्तमान में वो सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन और भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली और उसके जो दूसरे सेंटर्स हैं ढेंकानाल आदि वगैरह में भी आपने फोटोग्राफी के विजिटिंग फैकल्टी के रूप में काम किया है, कई वर्कशॉप्स वहां लगाई हैं। इसके पहले जयपुर के जो हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, वहां भी आप एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में कुछ वर्षों तक आपने अध्यापन कार्य किया। फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सिटी पैलेस जयपुर ने उन्हें वर्ष 2003 में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय सम्मान से सम्मानित किया। उनकी समाचार तस्वीरों को चीन में आयोजित
वेन इफ्रा एशिया मीडिया अवार्ड्स में स्वर्ण पदक मिला। प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस द्वारा फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसमें आपको पहला पुरस्कार मिला। और वर्ष 2024 में इसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की जो जूरी है, निर्णायक मंडल है, उसमें भी आप एक सम्मानित सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए। पर्यावरण विषय पर सियोल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता में भी आपकी तस्वीर को पुरस्कृत किया गया। हिमांशु व्यास जी की तस्वीरें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रही हैं। फ्रांस का प्रसिद्ध अखबार ल मोंड, द गार्जियन ब्रिटिश, बीबीसी, पॉलिटिको, इंडिया टुडे और वैनिटी फेयर सहित बहुत सारे ऐसे पत्र पत्रिकाएं हैं जिसमें आप नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में वर्षों तक उन्होंने कॉलम लिखा, योवर्स लेजरली। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि उनमें साहित्यिक पुट भी है, तो एक विटी कॉलम, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलम जो था आपका, उसमें वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। मध्याह्न भोजन से संबंधित उनकी जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स है, जिसमें आवारा कुत्तों से लेकर बच्चों का भोजन छीनने की गंभीर स्थिति सामने आई और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है। अंग्रेजी में आपने अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और संयोग से मेरे विश्वविद्यालय के साथ आपका गहरा जुड़ाव रहा, मेरे विभाग के साथ। लगातार 3-4 वर्ष तक आपने विद्यार्थियों के साथ वर्कशॉप आयोजित की और उस वर्कशॉप में कुछ विद्यार्थी ट्रेंड हुए और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर फोटो प्रतियोगिताओं में अपना नाम दर्ज कराया, जिसमें एक ताबीना अंजुम कुरैशी करके हैं, कश्मीर की वो मूलतः रहने वाली हैं और हमारे यहाँ से उन्होंने कोर्स किया। उन्हें फोटो डिवीजन ने एक कॉम्पिटिशन किया था, उसमें पुरस्कृत किया गया और ये ट्रेनिंग उन्होंने हिमांशु जी के उस वर्कशॉप में रह के ही की थी। मैंने अपने कार्यकाल में 5 रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किए थे मीडिया टीचर्स के लिए। हर कोर्स में आप आकर के आपने फोटो पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं से हमारे जो टीचर्स हैं उनका भी एक तरह से उनको सेंसिटाइज किया, उनका ओरिएंटेशन किया। वर्ष 2014 और 19 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में आयोजित ओजेड एशिया फेस्टिवल में व्याख्यान, प्रदर्शनी और प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया। 2019 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में फोटोग्राफी की कार्यशालाएं संचालित की। उन्होंने ग्रामीण किशोरियों को अभिव्यक्ति और सामाजिक प्रश्नों को समझने के सशक्त माध्यम के रूप में फोटो जर्नलिज्म का भी ट्रेनिंग दी है। यूनिसेफ की ग्रामीण किशोर किशोरी थिएटर प्रशिक्षण परियोजना में भी वे मेंटर रहे और इस परियोजना की जो एक मेथोडोलॉजी है, शिक्षण पद्धति है, उस पर एक पुस्तक नाटक टोली का भी आपने संपादन किया है। बालिका जीवन पर केंद्रित उनकी फोटो बुक फूली विशेष रूप से चर्चित रही है। फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से आपने फिल्म एप्रिसिएशन का 1 महीने का पाठ्यक्रम होता है, वो भी आपने वहां से पूरा किया है। और ए डार्क रूम, मेलोडी, PUR और कलाम खुश जैसी लघु फिल्मों का निर्माण भी किया है। इनमें PUR का निर्माण दक्षिण ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से हुआ, जबकि महात्मा गांधी को कला के माध्यम के रूप में अभिव्यक्त करने वाली फिल्म कलाम खुश को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया। फोटोग्राफी और सिनेमा के साथ साथ ब्राह्मी लिपि के अध्येता भी हिमांशु जी हैं। सिद्धम लिपि के सुलेखक और प्रायोगिक रंगमंच और फिल्मों के संगीत रचनाकार भी हैं। वह हाइकू सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मेंबर हैं और उनकी हाइकू कविताएं देश विदेश की अनेक पत्रिकाओं और संकलनों में प्रकाशित और पुरस्कृत हुई हैं। एक तारा प्रकाशन से प्रकाशित उनकी जापानी शैली की हाइकू कविताओं की पुस्तक अरे का लोकार्पण विश्व पुस्तक मेले 2026 में हुआ। कहने का मतलब है, हिमांशु जी का पूरा व्यक्तित्व एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। कैमरा, कलम, सिनेमा, कविता और शिक्षण, इन सब में वो पूरी तरह से समर्पित भाव से जुटे हुए हैं। आज विश्व फोटोग्राफी दिवस पर हम उनका यहाँ स्वागत करते हुए इस बात के लिए विशेष आभारी हैं कि इतने हेक्टिक शेड्यूल के बीच में भी उन्होंने हमारे इस वेबिनार के लिए समय निकाला और अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करने की स्वीकृति दी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई हिमांशु जोशी जी को अपनी बात कहने के लिए। हिमांशु जी। बहुत आभार भानावत जी। आपसे मिलना और आपको सुनना इतना अभिभूत करने वाला होता है कि लगता है कि अभी श्रोता बन जाए और आपको खूब देर तक सुने। ये शुरू से अनुभव रहा। जब मैं कक्षाएं लेने भी आता था आपके सेंटर पे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तभी उससे पहले जो आप जो एक छोटा सा परिचय देते थे या पत्रकारिता के बारे में बताते थे, फोटो पत्रकारिता के बारे में, वो अपने आप इतना सरस होता था कि हम
प्लान कुछ बनाकर आते थे और सडनली पता चलता कि नहीं नहीं ये सर ने जैसे बोला है उससे बात शुरू करके कुछ हम अपनी कक्षाएं लेते हैं। तो उसके बहुत आभार उसके लिए। और प्रियंका जी आपका भी बहुत आभार, भारतीय विद्यापीठ का आभार कि यहाँ मुझे इस वेबिनार में आमंत्रित किया। जैसा कि आपने भानव जी की एक खास बात मुझे और भी याद आती है कि बहुत साहित्यिक रहा है हमेशा इनका, जब भी सुनने को मौका मिला। आप साहित्य के क्षेत्र से रहे हैं तो पत्रकारिता में पहले साहित्यकार ही होते थे। इवन जो फोटोग्राफर होते थे वो भी साहित्यकार होते थे या कलाओं से संबंधित संबंध उनका रहता था। और मुझे भानव जी के साहित्य अनुराग की एक बात खास तौर से बहुत हमेशा याद रहती है कि वो बहुत दैनिक जीवन की चीजों को लेकर कुछ बहुत रोचक टिप्पणी करते थे। जैसे एक उदाहरण हमेशा देते हैं कि यहाँ दुर्घटना की संभावना है तो सर हमेशा कहते थे कि संभावना नहीं आशंका कहना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो शब्दों के प्रति ये जो हमने सर से काफी कुछ सीखने को मिला कि कैसे पत्रकारिता के अंदर भी साहित्य या कला या एक वैचारिकता होनी चाहिए। वो केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया ना बन के रह जाए। ये ऐसे गुरुजनों से सीखने को मिलता है और फिर हम उसको उस पर काम करें तो कुछ उस कार्य के अंदर एक वृद्धि होती है। और आप जिस कला रूप को, जिस डिसिप्लिन को साध रहे होते हैं उसमें भी कुछ जुड़ता है। अगर कोई विचारपूर्ण तरीके से कोई चीज की जाए तो उसके अंदर भी चीजें जुड़ती हैं। फोटोग्राफी आज जैसा अपना विषय बहुत सुंदर है, इसका जो इवन जो पहले 3 शब्द है बियॉन्ड द लेंस, मुझे लगता है आज उसी पर बात करनी चाहिए कि हम फोटोग्राफी का एक यांत्रिक स्वरूप बन गया है, जो एक कैमरा आधारित प्रणाली बन गई है। हम उससे थोड़ा सा इतर जाकर फोटोग्राफी को समझने का कोशिश करें, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करें, मनन करें। We'll ponder on something which is not precisely photojournalism, which is not precisely camera, which is not precisely just photography. We'll try to go literally beyond the lens in this little time that we have. It's not only World Photography Day today. आज एक बहुत रोचक चीज है कि 2026 पहले फोटोग्राफ जो लिया था नाइस्फोर नीप्सी ने फ्रांस के अंदर, उसकी 200वीं बरसी भी है, उसकी 200वीं जयंती है ये जो 2026 है। क्योंकि पहला परमानेंट फोटो नाइस्फोर नीप्सी ने फ्रांस के अपने घर से 1826 में लिया था। और डेट के बारे में हल्का सा कंफ्यूजन है, 1826 था 27 था, क्योंकि उस समय डॉक्यूमेंटेशन इतना प्रखर नहीं था। पर आज का दिन जब हम वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मना रहे हैं तो ये एक पहला तस्वीर जब एक इंसान ने लिया और वो एक परमानेंट फोटो था। उससे पहले भी प्रयास होते रहे फोटो लेने के, पर वो कोई भी फोटो स्थायी नहीं होता था। वो तस्वीर लेते थे और तस्वीर थोड़ी देर में उड़ जाती थी। इसलिए फोटोग्राफी करीबन 1770, 75, 80 में शुरू हो गई थी, पर कोई भी तस्वीर रुकती नहीं थी कागज के ऊपर, वो वाष्पित हो जाती थी। वो थोड़ी देर के लिए है और फिर नहीं, आप किसी को दिखाने नीचे गए, आप अपने घर में किसी को दिखाने गए कि मैंने फोटो लिया, तब तक वो सफेद कागज हो जाता था। तो नीप्सी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1826 में एक पहला परमानेंट फोटोग्राफ लिया। तो आज उनको याद करना भी बनता है। और जैसा कि भानव जी ने कहा कि 1839 में पहली बार फ्रांस की सरकार ने पूरे फोटोग्राफी करने की जो डेगवेरे टाइप प्रक्रिया थी उसको पब्लिक के लिए खोल दिया। तो इस अर्थ में मुझे लगता है कि फोटोग्राफी अपने उद्गम से ही बहुत लोकतांत्रिक रही है। वो लोगों के पास पहुंची ही एक लोकतांत्रिक तरीके से है, एक एक बड़ा ही सुंदर तरीके से, एक सामाजिक तरीके से पहुंची है कि वो जो विधा है वो एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर पूरी जनता को दे दी जाए। अगर हम माने तो वो कुछ इस तरह का है कि भाई एप्पल का फोन या कैनन की कोई टेक्नोलॉजी या कोई आधुनिक संयंत्र, कोई आधुनिक यंत्र जो हमारे जीवन में मार्केट में है, उसकी तकनीक सरकार अवाप्त कर ले और उसको जनता को दे दें। ये लीजिए, आप सब लोग फोन बनाइए, आप सारे ही लोग 5G कीजिए, आप सारे लोग फोन में
बदलाव कीजिए, अपने अनुसार अपना फोन बनाइए। ये कुछ इस तरह की बात हम समझ सकते हैं अगर एनालॉजी अपन इस बात की ले तो। और हाँ, बदले में ये भी था कि उन्होंने, फ्रांस की सरकार ने निप्सी और डेगवेरे को जीवन पर्यंत एक पेंशन दी इसके लिए। तो ऐसी भी सरकारें हो सकती हैं जो इतना दूर तक सोचे। अगर वो सरकार उस समय ये बात नहीं सोचती तो शायद आज फोटोग्राफी कुछ लोगों के हाथ में होती और एक प्राइवेट आर्ट फॉर्म की तरह चल रही होती। हम कल्पना नहीं कर सकते कि फोटोग्राफी के बिना मैं शायद ये बात आपको ना कह पाता आज, अगर फोटोग्राफी उस दिन पर सरकार ने जनता के लिए ना खोल दी होती, हम एक दूसरे को देख नहीं रहे होते। तो मैं प्रयास करूंगा कि फोटोग्राफी को उसका जो एक यांत्रिक परंपरा चल रही है जो कैमरे से जुड़ी हुई है, उससे थोड़ा सा हटाकर देखने की परंपरा की ओर ले जाऊं। तो आज का जो समय हम थोड़ा सा देखने पर बात करेंगे, क्योंकि फोटोग्राफी मूलतः एक देखने की परंपरा से जन्मी हुई एक अनुशासन है। इट्स अ डिसिप्लिन विच हैज बीन बॉर्न फ्रॉम विजुअल आर्ट्स, फ्रॉम अ ट्रेडिशन ऑफ सीइंग। और ये बहुत पुरानी परंपरा है। कैमरा बहुत यंग है। 200 साल किसी यंत्र की जीवन में कुछ भी नहीं होता, और मनुष्यता जो कि स्वयं अपने आप में लाखों बरस पुरानी है, उसमें एक 200 साल पुराने यंत्र का छोटा सा बेबी भी नहीं है। वो एक मॉलिक्यूल है, एक छोटा सा फीटस है भी, वो ऐसा कह सकते हैं। तो हम लोग जो कुछ भी फोटोग्राफी करते हैं वो दरअसल उस कला में अभी भी जोड़ रहा है। आप शायद शास्त्रीय संगीत में एक व्यक्ति उतना नहीं जोड़ पाए क्योंकि परंपरा बहुत पुरानी है। हम शायद चित्रकला में उतना नहीं जोड़ पाए क्योंकि परंपरा बहुत पुरानी है। हम शायद नृत्य में एक व्यक्ति को कुछ जोड़ने के लिए अद्भुत साधना करनी पड़ेगी। पर फोटोग्राफी में एक 12 साल का बच्चा भी तस्वीर लेता है तो उस परंपरा में जुड़ता है, क्योंकि ये परंपरा बहुत नई है, बहुत अबोध है। इट्स अ नेसेंट ट्रेडिशन। किंतु देखने की परंपरा वो नेसेंट नहीं है। देखना बहुत पुराना है। बियॉन्ड द लेंस इस देखने की परंपरा का विवेचन है। ये कब से है? ये क्या है? देखना है क्या? ये फोटोग्राफी में कहां जुड़ती है? हम इसी सेशन में थोड़ा सा आगे जाकर वापस कैमरे की ओर लौटेंगे, पर हम थोड़ी सी एक शुरुआती जानकारी देखने की लेते हैं। एक बहुत सुंदर किताब है, मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट या सुन रहे हैं उनको ये किताब अवश्य देखनी चाहिए। ये हिंदी अनुवाद है, वैसे मूल किताब है जॉन बर्जर की वेज ऑफ सीइंग, देखने के तरीके। तो मुझे लगता है सारे ही जो भी फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं उनको इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए, वेज ऑफ सीइंग। तो हम ऐसी कुछ पुस्तकों की बात भी इस सेशन के दौरान करेंगे। ये एक कमाल की किताब है। इस किताब ने देखने को जैसा बदला है, हम जैसे पेंटिंग्स को देखते हैं, हम जैसे फोटोग्राफ्स को देखते हैं, हम जैसे फोटो जर्नलिज्म को देखते हैं, हम जैसे विज्ञापनों को देखते हैं, हम जैसे पेंटिंग्स को देखते हैं, उस सब में करीबन 1970 के दशक में किताब आई और बीबीसी पर एक एक साक्षात्कारों की सीरीज थी। उसको बाद में इस किताब का रूप दिया गया। और जॉन बर्जर एक बहुत ही सुंदर विचारक, एक कला मर्मज्ञ हुए हैं। इनकी पहली जो पंक्ति है जो इस किताब के ऊपर ही छपी हुई है, कमाल की पंक्ति है। वो कहते हैं, देखना शब्दों से पहले आता है, बोलने से पहले बच्चा देखता और पहचानता है। सीइंग कम्स बिफोर वर्ड्स, बिफोर स्पीकिंग अ चाइल्ड सीज एंड आइडेंटिफाइज। एक छोटा सा बच्चा भी पेड़ को पहचानता है, वो पक्षी को पहचानता है। वो जब 25 साल का हो जाएगा तब भी उस दृश्य को याद रखेगा, पर शायद उस दिन साल भर के बच्चे ने अगर कोई बात सुनी है तो उसे याद नहीं रहेगी, कोई शब्द सुना है तो उसे याद नहीं रहेगा, उसका अर्थ उसे नहीं पता। शब्द और अर्थ की दुनिया में बहुत लेट आएगा वो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। पर दृश्यों की दुनिया में वो आ चुका है। जो 25 साल की उम्र में फोटोग्राफी करने वाला है, एक फोटो जर्नलिज्म बनने वाला है, वो 1 महीने की उम्र से देख रहा है। उसका प्रशिक्षण, उसकी एस्थेटिक्स, उसको देखने की समझ, वो हॉस्पिटल से शुरू हो चुकी है। वो अपनी नानी के घर से शुरू हो चुकी है। वो जब अपने पिताजी के कंधे पर है, वो 3 महीने का है, तब से वो देख रहा है।
और हम नहीं कह सकते कि ये देखना उसके 25 साल की उम्र में किसी तस्वीर लेने में काम नहीं आएगा। फोटो जर्नलिज्म एक गहरी चीज है, फोटोग्राफी एक गहरी चीज है। वो अभी ऐसा कुछ समय है कि कैमरे की तरफ अधिक मुड़ गई है, और मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि जितना इसका प्रशिक्षण बढ़ रहा है, जितने इसके इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, जितना ये अ, पढ़ाया जाने लगा है, देखना नहीं पढ़ाया जा रहा है उतना, जितना यंत्र को पढ़ाया जा रहा है। इसलिए एक अच्छा फोटो जर्नलिस्ट होना, एक अच्छा फोटोग्राफर होना, आपको इस देखने की जो कौशल भी नहीं कह सकते ये, है ना? ये नैसर्गिक है देखना, वो शब्दों से पहले आता है। जॉन बर्जर ने ऐसा क्यों कहा? इसका प्रूफ है, हमें जो सबसे पुराने गुफा चित्र मिलते हैं वो करीबन 27,000 साल पुराने हैं, जो सबसे पहले मिले 20वीं सदी के शुरुआती 25 सालों के अंदर जो गुफा चित्र मिले फ्रांस के लेस्कों की गुफा के अंदर, वो एक चित्र जैसे हैं, वो एक तस्वीर के जैसे हैं, वो एक फोटोग्राफ के जैसे हैं। उनमें एक दृश्य दिखाया गया है, और वो एक चित्र नहीं है, वो करीबन 500-600 चित्र उस गुफा के अंदर मिले थे, जो ने चित्र ढूंढे थे। और उनमें एक जो बहुत सुंदर चित्र है, जो मैं अक्सर कक्षाओं में पढ़ाता हूँ, जब विद्यार्थियों से बात भी करता हूँ और वो चित्र दिखाता हूँ, और हम फोटो जर्नलिज्म की कक्षा में करीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा उस एक फोटो पे बिताते हैं, क्योंकि वो बहुत फोटो जर्नलिस्टिक है। केवल कैमरे से लिया हुआ दृश्य ही फोटो जर्नलिज्म नहीं होगा। कोई भी रोशनी में बना हुआ चित्र है, कोई छवि है, कोई इमेज है, वो फोटो जर्नलिस्टिक है। अगर वो घटना कम्युनिकेट कर रही है, तो फोटो जर्नलिज्म का जो बीज है वो गुफा चित्रों में मिलता है आपको। तो वो चित्र है जिसमें कुछ घोड़े दौड़ रहे हैं, और एक घोड़े के ऊपर एक भाला लगा हुआ है। अद्भुत चित्र है वो जिस हम नहीं पहचान सकते 27,000 साल पहले वो किसने बनाया होगा, परंतु हमें अक्सर पढ़ाया गया है कि वो चित्र बनाने वाले लोग 27,000 साल, 40,000 साल पहले लोग हंटर्स और गैदरर्स थे। वो शिकारी थे और चीजें फल फूल इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे। हम उन 600 तस्वीरों को भूल जाते हैं जब हम उनको हंटर्स और गैदरर्स कहते हैं। वो जब चित्र सामने आए तो फ्रांस की कल्चर मिनिस्ट्री, कई सारे जो अकादमिक पेंटर्स थे, वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि हमें तो लगता था कि मनुष्य पहले बहुत ही क्रूड पेंटिंग्स बनाता था, वो आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचता था, और धीरे धीरे जैसे जैसे उन्नत हुआ समय के साथ उसने अच्छी चित्र बनाने शुरू किए। पर ऐसा नहीं था, मनुष्य हमेशा से बहुत सुंदर चित्र बना रहा था, पर हम उनको कलाकार के रूप में नहीं पहचानते। हम उनको एक एक मांसभक्षी, एक गैदरर, एक शिकारी, एक उज्जड़ की तरह पहचानते हैं। बाल बिखरे हुए, खून से सना हुआ, पसीने से भरा हुआ, दिन भर मारकाट मचा रहा है। नहीं, वो ही व्यक्ति उस चित्र का रंग लेने के लिए, जो लाल रंग होता था, 250 किलोमीटर दूर जाता था, क्योंकि वो रंग फ्रांस की उस गुफा के आसपास नहीं मिलता। बाद के परीक्षणों से पता चला कि वो 250 किलोमीटर दूर जाके मैंगनीज ऑक्साइड लेकर आता था, जिससे वो लाल रंग किया करता था। तो देखने का और दिखाने का ये जो एक एक परंपरा है, ये जो एक आनंद है, ये जो सुख है, ये कैमरे से बहुत पुराना है। ये तो 27,000 साल था, उसके बाद तो और पुरानी तस्वीर मिली, और वो उनसे भी बेहतर थी। और हमारी सभ्यता विस्मित होती गई कि ये क्या चल रहा है, हमसे भी बेहतर कोई था क्या? तो पर ये चीज हमेशा से ऐसी रही है। पर ये देखिए कि गुफा चित्र भीमबेटका का भी एग्जाम्पल है, वहां के भी अपन चित्र देखते हैं तो उनमें भी अद्भुत इसी तरह की ड्राइंग्स देखने को मिलती है। एक क्षण के लिए एक अलग इमेज पर आते हैं, अशोक के शिलालेखों को लीजिए। करीबन अफगानिस्तान से, कांधार से लेकर कहाँ उड़ीसा तक और इधर दक्षिण तक, इतने बड़े भूभाग के अंदर 40 से अधिक शिलालेख उस समय में, और कमरे जितनी बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखे हुए, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं।
और भाषा दरअसल प्राकृत और उसके अंदर है, पर वो लिपि ब्राह्मी है। इमेजिन अ ह्यूज रॉक ऑफ द साइज ऑफ अ रूम इंस्क्राइब्ड, और हथौड़ा और छैनी से लेकर उसके ऊपर अशोक के एडिक्ट्स लिखे हुए हैं, जो बातें उनको अपनी प्रजा से कहनी थी। मुझे कई बार लगता है कि वो पहले एडिटोरियल्स हैं जो अशोक के शिलालेख हैं, उनको पत्रकारिता में पढ़ाया जाना चाहिए। वो रिपोर्टर्स को भी पढ़ाए जाने चाहिए और फोटोग्राफर को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लिपि दरअसल चित्र है। क्योंकि आप जब अ देखते हैं, आप जब आ देखते हैं, आप जब ई देखते हैं, एक क्षण के लिए एक रोचक सा प्रयोग कीजिए। आप अपने मुंह से अ बोल के देखिए, क्या सामने अ की आकृति आती है? नहीं आती। वो एक ध्वनि है। तो फिर उसका जो चिन्ह है वो कहां से आया? क्या ध्वनि को फोटोग्राफ किया किसी ने कि वो कैसी दिखती है? नहीं। वो चिन्ह कल्पना है, वो एक छवि है। वो किसी ने बैठ के बनाया कि अ की छवि ये होगी। इन अ सेंस दैट इज अ इमेज। ऑल द अल्फाबेट्स आर एन इमेज। हमारी सारी लिपियां, वो सारी एक छवियां हैं, वो एक इमेज है। तो मनुष्य का ये जो इमेज से नाता है, तो अगर ये इमेज नहीं होती तो टेक्स्ट भी नहीं होता, तो शब्द भी नहीं होते, तो वाक्य भी नहीं होते। अगर किसी ने इमेजिन नहीं किया होता कि भाषा दिखेगी कैसे, ये सारा कुछ जानना हमें दरअसल एक विजुअल इंसान बनाता है, जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट होने के लिए जरूरी है। मैं नहीं कहता कि ये जाने बिना फोटो जर्नलिज्म नहीं हो सकता या फोटोग्राफी नहीं हो सकती, होती है। जरूरी नहीं है कि सबको ये ज्ञान ही हो, परंतु ये जानना एक सौंदर्य पैदा करता है, एक तरह का एक विस्मय पैदा करता है आपके अंदर कि अच्छा, ऐसे उद्गम हुआ है क्या? कैमरा बहुत लेट आया, पर छवियां बहुत पहले थी, इमेजेस हमेशा से रही हैं। और एक एक छोटी सी कथा लेते हैं अपन, एक साहित्यिक कथा लेते हैं, जिसमें हम ऐसा देखने का प्रयास करेंगे इसी बात को कि कैसे हम छवियों से घिरे हुए हैं। एक बहुत सुंदर कथा आती है एक उपन्यास के अंदर। सर उससे अवश्य परिचित होंगे, अनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है अनाम दास का पोथा, और बहुत अद्भुत उपन्यास है। मेरा जीवन एक दृष्टि खुली उस उपन्यास को पढ़ के। उसमें एक कथा आती है, दरअसल वो एक तरुण तपस्वी रैक्व की कथा है, और वो एक राजकुमारी है जाबाला, उससे मिलता है, जो राजा जानश्रुति की कन्या है। रैक्व युवा हैं, शायद 20-21 बरस के होंगे, और उनकी माता का देहांत हो गया है बचपन में ही, और वो अपने पिता के आश्रम में पले बड़े हैं किसी अरण्य के अंदर, और पिताजी उनकी शिक्षा दीक्षा चलती थी, विद्यार्थी थे आश्रम के अंदर, और रैक्व अपनी ध्यान साधना के लिए जंगलों में घूमते रहते थे, कभी पर्वत के किनारे, कभी नदी के किनारे, पर्वत के नीचे। उन्होंने कभी स्त्री नहीं देखी थी। He had never seen a woman in his life. एक बार उनके पिता का भी देहांत हो जाता है, आश्रम उजड़ जाता है, और रैक्व जंगल में भटकने लगते हैं। एक बार भयंकर तूफान आता है, नदी नाले उफन उफन पड़ते हैं, हवाएं चलती हैं, पेड़ के पेड़ उखड़ के उड़ जाते हैं, और उसमें रैक्व भी, जो एक चट्टान पे बैठे थे नदी किनारे, वो भी एक धारा के प्रवाह में उछल के नदी द्वारा कहीं दूर ले जाके फेंक दिए जाते हैं, और रैक्व बेहोश हो जाते हैं। उनकी आंख खुलती है, और वो एक नगर का रास्ता होता है, किसी नगर में जाने का रास्ता होता है। वहां देखते हैं कि एक रथ टूटा हुआ पड़ा है, रथ के पहिए टूटे हुए पड़े हैं। कुछ दूर आगे कुछ घोड़े मरे हुए पड़े थे, और एक कोचवान था, वो भी प्राण गंवा चुका था। तो रैक्व इधर उधर देखते हुए आगे जाते हैं, और उनको एक बहुत ही अद्वितीय प्राणी दिखता है। रैक्व को लगता है ये कोई देवलोक का प्राणी है, ये कोई धरती का व्यक्ति नहीं है। तो वो उसको पास में जाते हैं, वो बेहोश होता है, तो उसकी आंख को वो छूने का प्रयत्न करते हैं। उनको लगता है कि ये कोई मृग प्रजाति का व्यक्ति तो नहीं है,
और तभी वो व्यक्ति उठ जाता है। वो दरअसल राजा जानश्रुति की कन्या जाबाला होती है। वो ठिठक के पीछे होती है और रैक्व को देखती है और समझ जाती है कि ये कोई तपस्वी है। वो कहती है कि तरुण तापस, क्या आपको भान नहीं कि किसी स्त्री के ऐसे नजदीक नहीं आना चाहिए। अब उन्होंने कभी भी देखा नहीं है स्त्री को। तो वो कहता है क्या आप देवलोक से हैं, उनको पूछता है रैक्व। जाबाला भी बड़ी समझदार होती है, विदुषी होती है। वो समझ जाती है कि ये अबोध है, इनको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। तो वो उनको समझाने के लिए एक बहुत सुंदर तरीका काम में लेती है। वो पूछती है, क्या आपने व्याकरण पढ़ी है? वो कहते हैं हाँ। क्या आपने उसमें स्त्री पद पढ़ा है? वो कहते हैं हाँ पढ़ा है, पुरुष पद, स्त्री पद। मैं उस स्त्री पद का अर्थ हूं। आई एम द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड विच यू हैव रेड। और रैक्व तुरंत पहचान जाते हैं। उनको जो अभी तक शब्दों की ही जानकारी थी कि अच्छा ये स्त्री पद होता है, ये पुरुष पद होता है, ये शब्द है, शाब्दिक जानकारी को जाबाला ने सडनली एक मीनिंग दे दिया, एक प्रत्यक्ष मीनिंग दे दिया। ये जो दृश्य उन्होंने देखा, ये एक फोटोग्राफर के लिए एक आवश्यक है कि वो विश्व को या पदार्थों को, ऑब्जेक्ट्स को एक कुछ शब्दों के मीनिंग की तरह देखे, वो कुछ भावनाओं के अर्थ के पदार्थ की तरह देखे। ये फोटोग्राफर के लिए समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ मैं आना चाहूंगा कि ये जो दृश्य कम्युनिकेट करने की कला है, जो हम एक फोटोग्राफर को आना चाहिए, इसमें दो चीजें अक्सर आ जाती हैं। हमने अभी तक जो पेंटिंग के उदाहरण लिए, उसमें कम्युनिकेशन आता है, हम किसी दृश्य को देख के समझ जाते हैं। मैं एक बार शेयर करके आपको दिखा भी सकते हैं कि ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो प्रियंका जी दिख रहा है ना तस्वीर जी। हाँ। ये लेस्को गुफा की वो तस्वीर है जो 27,000 साल पहले बनी हुई है। एक शिकार की तस्वीर है। दूसरा, और ये वो तस्वीर है जो नीपसी ने अपनी छत से 200 साल पहले ली थी। और इस फोटो को लेने में 8 घंटे का समय लगा था, 1826। और ये तस्वीर आज भी एक म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट परमानेंट फोटोग्राफ एवर टेकन बाय अ ह्यूमन बीइंग। और ये नीपसी स्वयं है। मजे की बात है कि उनका स्वयं का जो फोटो है वो उनकी प्रक्रिया से नहीं लिया हुआ, वो डेगवेरे टाइप है। डेगवेरे की प्रक्रिया से लिया हुआ ये उनका तस्वीर है। और ये डेगवेरे हैं जिनकी प्रक्रिया को फ्रांस सरकार ने 1839 में अपनाकर विश्व के लिए खोल दिया था। तो डेगवेरे और नीपसी का संयुक्त वो प्रयास था। एक और व्यक्ति जिनका फोटो हमें देखना चाहिए, वो है सर जॉन हर्शल, जिन्होंने फोटोग्राफी शब्द हमको दिया। ये एक पॉलीमैथ थे, भाषाविद थे, एस्ट्रोलॉजर थे, वैज्ञानिक थे। और ये भी एक डेगवेरे टाइप है। और इनके पोर्ट्रेट को देखने से लगता है कि कैसा ओजस्वी व्यक्तित्व ये रहा होगा। और मैंने एक बात की थी जो लिपि की, वो भी देखते हैं हम, जो शिलालेख हैं। तो मुझे लगता है कि फोटोग्राफी के विद्यार्थी को इन सब चीजों से भी परिचय कराना चाहिए। जो भी फोटोग्राफी पढ़ता है उसको एक उसका जो समृद्ध विजुअल हिस्ट्री रही है उससे परिचित होना एक उसमें गहराई लाता है और एक उसमें एक गंभीरता भी लाता है। एक और
फोटो में दिखाना चाहता हूं कि कैसे जो लोग बहुत ही कम संसाधनों के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने क्या-क्या काम किया। ये एक एडवर्ड मुएब्रिज करके व्यक्ति थे जिन्होंने 1877 में ये ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली तस्वीर है जहां से फोटोग्राफी का सत्य से संबंध शुरू हुआ। ये वो तस्वीर है जब पहली बार मनुष्य ने सोचा कि अ फोटोग्राफ कैन बी अ मीन्स टू डिटरमाइन अ फैक्ट। और फैक्ट उनको जो पता लगाना था, मुएब्रिज को लगा कि मैं बताता हूं कि जब घोड़ा दौड़ता है तो किसी भी क्षण क्या उसके चारों पांव हवा में होते हैं क्या? फोटोग्राफी के आविष्कार से पहले कोई कुछ भी कह दे, भले ही घोड़ा स्वयं कह दे, अगर उसको आशा है कि मेरे पांव रहते हैं, पर अगर वो तस्वीर में रुक के दिखा नहीं पाएगा घोड़ा, हवा में रुक के, कैसे रुकेगा? हवा में कौन रोक सकता है चीज को? वो एक कैमरा रोक सकता है। मुएब्रिज ने पहली बार 12 तस्वीरों की एक श्रृंखला खींची और दिखा दिया कि हाँ, घोड़ा जब दौड़ता है तो एक क्षण ऐसा आता है जब उसके चारों पांव, चारों खुर हवा के अंदर होते हैं। ये वो तस्वीर है जो आप मध्य में देख रहे हैं। हम्म? और ये वो तस्वीर है जहां से फोटोग्राफी का सत्य से रिश्ता भी शुरू होता है, जब फोटोग्राफ को एक एविडेंस की तरह काम में लेना शुरू किया। ये तो केवल 12 तस्वीरें थी जिससे उन्होंने एक प्रूफ दिया, परंतु यही तस्वीरें आगे जाके सिनेमा के आविष्कार का स्रोत बनी। वो कैसे? इन्हीं तस्वीरों को जब मुएब्रिज ने एक साथ चलाया और हमें सिनेमा मिल गया। यहां से सिनेमा का बीज पड़ता है। फोटोग्राफी धीरे धीरे चलती चलती सिनेमा के अंदर पहुंच गई। जिस प्रकार गुफा चित्र धीरे धीरे चलते हुए फोटोग्राफी में पहुंचे, उसी तरह फोटोग्राफी धीरे धीरे चलती हुई सिनेमा में पहुंच गई। तो आज हम जो हिल रहे हैं, बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, टीवी पर इमेजेस आ रही है, वो शुरुआत यहां से हुई है। और एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा उस व्यक्ति की जिसने कैमरे का आकार छोटा किया। पहले जो फोटोग्राफी होती थी वो करीब करीब ऐसे बड़े बड़े कैमरों से होती थी। ये मेरे पास एक याशिका का ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा है जिसमें एक लेंस इधर है और दो लेंसेज हैं। इतना बड़ा कैमरा है और इसको यहां से खोल के इधर से देखा जाएगा इमेजेस को। और ये बड़े धीमे कैमरे होते थे। आप फोकस इधर करते हैं, इमेज इधर चलती है, उल्टा चलना पड़ता था आपको। सारी ऐतिहासिक तस्वीरें ऐसे कैमरों से ली गई है, भले वो महात्मा गांधी की हो, भले वो हिटलर की हो, भले वो टैगोर की हो, भले वो कोई विश्व युद्ध की तस्वीरें हो, वो इस प्रकार के कैमरों से ली गई है। परंतु ये जो वैज्ञानिक हैं, ऑस्कर बेरनेक, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारा कैमरा छोटा किया। ये जो हम हैंडी कैमरा देख रहे हैं, एसएलआर कैमरा, जो 35 mm कैमरा देख रहे हैं, वो करने वाले ऑस्कर बेरनाक थे। इन्होंने सबसे पहले नेगेटिव का साइज छोटा किया। बिल्कुल ये जो नेगेटिव है, ये हमको देने वाले ऑस्कर बेरनाक थे। ये 35 mm का नेगेटिव हुआ और इसके कारण कैमरे की साइज छोटी हुई और फोटो जर्नलिज्म का जन्म हुआ। एक तरह से कह सकते हैं जन्म हुआ, क्योंकि छोटे कैमरे को लेकर कहीं भी जाया जा सकता था। आप उसको जेब में रख सकते थे, आप उसको छुपा सकते थे, आप तुरंत फोटो खींच के अपने रास्ते निकल सकते थे। तो ऑस्कर बेरनैक इस मामले में नीप्सी और डैगवेरे जितने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और ये उनका पहला कैमरा है जो उन्होंने आविष्कार किया। और ये वो 35 mm की फिल्म है जिसके कारण आज हम इतनी जल्दी फिल्म फोटोग्राफी कर सकते हैं।
अभी हम मूल फोटोग्राफी के ऊपर आते हैं। 5-7 मिनट में और लूंगा सर, है ना सर? फोटोग्राफी और जो दूसरे विजुअल मीडियम्स हैं उनमें एक मुख्य फर्क है, वो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का भेद। कोई भी फोटोग्राफ, ये एक द्वंद है कि आप कोई भी तस्वीर लेंगे और किसी को दिखाएंगे, वो पूछेगा ये कहां ली, या पूछेगा ये कौन है, ये क्या कर रहा है। ये जो जर्नलिज्म का 5W और 1H है, वो फोटोग्राफी में जैसे नक्की किया हुआ है। परंतु आप किसी को पेंटिंग दिखाते हैं तो कभी कोई नहीं पूछता कि ये कहां पर है। मेरी एक तस्वीर है जो मैं कई बार दिखाता हूं, अच्छी है कैसी भी है, वो एक चंद्रमा की फोटो है जो पेड़ के बीच में से झांक रहा है। तो मुझे अक्सर ध्यान है, मैं जब भी वो तस्वीर कहीं दिखाता हूँ कार्यशालाओं में, पहला सवाल उसके बाद में आता है, सर ये कहां ली, ये कहां पर है? अरे भाई ये चांद है। चांद कहां पर है? चांद तुम्हारे ऊपर ही है, खिड़की से बाहर देखो। मैं बता नहीं सकता चांद कहां पर है। सर ये पेड़ कौन सा है? ये जो इंफॉर्मेटिव एंजाइटी है हमारे अंदर, ये कम्युनिकेशन को दबाती है। फोटोग्राफ चूंकि रियलिटी से बना हुआ है, इसलिए हमेशा उसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन की लेयर चढ़ जाती है जो कम्युनिकेशन को छुपा देती है। फोटोग्राफर का काम है उस इंफॉर्मेटिव लेयर को पार करके उसको कम्युनिकेटिव बनाना। वो बनेगी उसमें भावना डालने से, वो बनेगी उसको एस्थेटिक बनाने से, वो बनेगी उसमें एक कंपैशनेट एंगल डालने से, वो बनेगी उसको मानवीय बनाने से। आपको मैं वो तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा जो, हाँ, पर वैन गॉग की जो स्टारी नाइट्स है या टैगोर के जो पोर्ट्रेट्स हैं, कोई नहीं पूछता कि ये तारे कहां पर है, क्योंकि वो पेंटिंग है। तो फोटोग्राफर के लिए ये एक डाइसी एरिया है कि जैसे ही वो तस्वीर खींचेगा दिखाएगा, लोग उसमें इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे। और इंफॉर्मेशन हम जानते हैं एक सतह पर चलती है, कम्युनिकेशन गहरे जाता है। कम्युनिकेशन की थ्योरी में भी है कि जब तक वो उसको ग्रास्प नहीं करे और वापस रेस्पॉन्ड नहीं करे, तो कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। इंफॉर्मेशन होती है जो केवल, हाँ ये चांद है, ये इतना किलोमीटर दूर है। आइए हम वो फोटो देखते हैं जो मैं सोच रहा था कि हाँ, ये इंफॉर्मेशन, ये वाला वो फोटो है। फोटो दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, इस तस्वीर को देखते अक्सर पूछते हैं ये चांद कहाँ था। अब ये चांद कहां पर है, ये जानकारी इस फोटो का मूल तत्व नहीं है। ये फोटो कुछ और कम्युनिकेट करना चाह रहा है। परंतु हम अमृता शेरगिल की 3 गर्ल्स देखते हैं तो हम नहीं पूछते कि ये लड़कियां कौन है। एक और तस्वीर आपको देखते हैं। हाँ, ये वैन गॉग की स्टारी है। इसमें कभी कोई नहीं पूछता कि ये तारे कहां पर है। ये एक फोटोग्राफर को समझना जरूरी है कि क्यों वो बहुत अच्छी फोटो खींचता है पर वो लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें जानकारियां ही जानकारियां हैं। उसके अंदर भावनाओं का रक्त नहीं बह रहा है उसकी धमनियों के अंदर। इसलिए वो तो ये जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का एक द्वंद है, ये फोटोग्राफर को पहचानना जरूरी है। ये जो सूचना का अतिक्रमण है और कम्युनिकेशन बनाना, ये एक फोटोग्राफर को पावरफुल कम्युनिकेशन का टूल बनाता है। अभी मैं एक क्योंकि समय अपने पास इतना ही है, मैं एक वो भूमिका बनाना जरूरी समझता था कि ये जो एक अवसर मिला है और ये चूंकि यूट्यूब पर भी रहेगा, तो मैं वो बातें कह पाऊं जो अक्सर कक्षाओं में या क्लासरूम्स में, वर्कशॉप्स में नहीं बात होती। पर फोटोग्राफी की परंपरा बनाने के लिए उनका एक जगह पर रिकॉर्ड हो जाना आवश्यक है। आखिर में मैं उन 2 व्यक्तियों का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने इसकी जो कम्युनिकेशन पावर है, जो पावर ऑफ पिक्चर्स है, उनको पहचाना। पहला था एक पब्लिशर और दूसरा था एक फोटो जर्नलिस्ट। पब्लिशर थे हेनरी ल्यूस।
जो लाइफ मैगजीन के फाउंडर थे 1937 में, उन्होंने वो क्या करते थे कि पूरे विश्व से सप्ताह भर की फोटोज मंगाते थे और अपने कॉपी एडिटर्स को, डिजाइनर्स को दिखाते थे और कहते थे कि देखो, हम इन तस्वीरों से एक मैगजीन बना सकते हैं। यूजुअली होता है कि मैगजीन होती है, उसमें तस्वीरें लगती हैं। हेनरी ल्यूस करते थे कि हमारे पास तस्वीरें हैं, अब हम मैगजीन बना सकते हैं। तो लाइफ मैगजीन, जिसने फोटो जर्नलिज्म को क्या कहना चाहिए, बनाया एक तरह से, और ऐसा भी कहते हैं कि हमारा जो विजुअल हिस्ट्री है वो लाइफ मैगजीन की बनाई हुई है। हम विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करते हैं वो लाइफ मैगजीन में देखे हुए हैं। तो हेनरी ल्यूस एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिन्होंने पावर ऑफ पिक्चर्स को पहचाना और उसे एक बहुत बहुत सुदृढ़ कम्युनिकेशन टूल बनाया। दूसरे व्यक्ति हैं हेनरी कार्टियर ब्रेसन, जो फोटो जर्नलिस्ट थे और वो फोटो जर्नलिज्म के पितामह भी कहे जाते हैं। उन्होंने ये जो फोटोग्राफी की परंपरा थी उसके अंदर उसको पेंटिंग से अलग करने के लिए उन्होंने बताया कि फोटोग्राफ के अंदर एक मोमेंट, जो फोटोग्राफी को सबसे पावरफुल बनाता है वो उसका एक्सपोजर नहीं है, वो कंपोजिशन के नियम नहीं है, वो उसका सौंदर्य नहीं है, वो कितनी फिडेलिटी कैसी है, उसकी रिजोल्यूशन कैसा है, वो लाइका है, नाइकॉन है, कैनन है, कुछ भी है, पर अगर उसके अंदर क्षण आपने पकड़ा है तो फोटोग्राफ पावरफुल होता है। उस फोटो को, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने कुछ फोटोज खींचे थे। उनमें से एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा आज, जो उस डिसिसिव मोमेंट को समझाने के लिए बहुत आवश्यक है। वो है ये फोटो। ये हेनरी कार्टियर ब्रेसन का फोटोग्राफ है जो डिसिसिव मोमेंट को हमारे सामने लाता है। एक सटीक क्षण पे दबाया हुआ शटर उस फोटो को एक अमरता प्रदान करता है। और मैं कुछ अपनी तस्वीरें आपको जल्दी से दिखा देता हूं ताकि शायद प्रश्न उत्तर में उनके ऊपर बात की जाए, क्योंकि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और हम अगर फोटोज नहीं देखेंगे तो वो थोड़ा रसहीन सा लगेगा। अ, ये सारे फोटो मैं डिसिसिव मोमेंट के दिखा रहा हूं कि किस प्रकार फोटो जर्नलिज्म में एक सही क्षण पर क्लिक करना बहुत आवश्यक है। ये एक सिंपल बारिश का फोटो है, पर वो जिस क्षण बच्चा अपने पांव ऊपर करता है और अपनी माँ और मासी पर अविश्वास पैदा करता है कि तुम भले ही कितनी सावचेत हो, मैं तो पांव ऊपर करूंगा, पांव मेरे पानी में भर जाएंगे। और इस क्षण के लिए मुझे 1.5 घंटा तक जो मुख्य सचिव का घर है उसके सामने सेंट्रल पार्क के बाहर बैठना पड़ा बारिश के अंदर, इस एक तस्वीर के लिए। तो वो धैर्य बहुत आवश्यक है, तब आपको वो एक क्षण मिलता है 1.5 घंटा बिताने के बाद में। ये एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है समाज का। इस तस्वीर के ऊपर 3 दिन तक एक कार्यशाला हो सकती है। इसमें जो दिख रहा है, घड़ी पहने हुई औरतें एक पब्लिक प्लेस पर और सबके सब घूंघट निकाले हुए, और एक आदमी जो मस्त होके बीड़ी के धुएं छोड़ रहा है उनके सामने, और वो अपना घूंघट ढकना पड़ रहा है कि धुआं पता नहीं क्या धुएं के कारण है, किस कारण से। पर ये तस्वीर मैंने टोंक में ली थी, निवाई में। और जब मैं दरअसल एक नृत्य खींच रहा था, एक मेला चल रहा था, लोक गांव का मेला, और मैंने देखा कि ये धुएं के छल्ले छोड़े जा रहे हैं। मैं काफी दूर था तो मुझे लगा इसका फोटो लेना चाहिए। तो मेरी पहली नजर गई कि बीड़ी कितनी बची है, क्योंकि अगर मुझे और ऐसा फोटो लेना है तो उसके पास और बीड़ी बची हुई होगी तो ही मैं फोटो ले पाऊंगा। तो उस बीड़ी में 1-2 पफ और बचे थे, तब ये फोटो ले पाया। ये 2 क्लिक लिए हुए, इसमें 1.5 घंटा नहीं रुकना पड़ा, ये 1.5 मिनट के अंदर ये तस्वीर लिया हुआ है। तो धैर्य चाहिए और बहुत एकाग्रता आपको चाहिए।
ये एक सरल सा फोटो है दीपावली के अवसर का, पर अगर आप निर्णायक क्षण पे लेते हैं, तो वो उसमें एक सौंदर्य आ जाता है, उसमें एक कम्युनिकेबिलिटी आ जाती है। मुझे लगा 1-2 राजनीतिक तस्वीरें भी होनी चाहिए, फोटो जर्नलिज्म की बात हो रही है तो। अ, इस फोटो में जो दिख रहा है, वो रिपोर्टर कभी भी लिख नहीं पाएगा, वो एडिटर कभी भी कह नहीं पाएगा, क्योंकि लिखने और छापने के कुछ भी दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर लिखा जाए, पर तस्वीर है, आप देख सकते हैं क्या, पर ये क्षण है, ये गुजरता हुआ सा क्षण है, और इसके लिए 1.5 2-2 घंटे तक आपको कैमरे को आंख से लगाकर बैठना पड़ता है, लगातार मंच को देखना पड़ता है, और आपके पसीने की बूंद यहां से आकर आपके मुंह में आ जाती है, और आपको पसीने का एक टेस्ट आता है कि हाँ सॉल्टी सा कुछ टेस्ट आया, पर आप कैमरे को हटा नहीं सकते, क्योंकि वो क्षण आके चला जाएगा, पता नहीं कौन सा क्षण होगा। तो ये सच में स्वेट एंड ब्लड की कहानी है, एक अच्छा पावरफुल पिक्चर ले पाना। और एक आखिरी ये भी एक मोमेंट है, एलजीबीटीक्यू परेड में लिया हुआ एक तस्वीर है, जयपुर की सड़कों पे। और एक और पॉलिटिकल पिक्चर, ताकि दोनों तरफ कुछ कुछ अपन देख पाए, एक जो इन दोनों सज्जनों को पहचानते हैं और उस समय क्या राजनीति चल रही थी, वो इस तस्वीर का मर्म समझ सकते हैं कि ये जो एक छोटा सा झांकने का क्षण है, वो क्या कह रहा है। एक मुझे लगा जो पुरस्कृत पिक्चर है वो भी दिखानी चाहिए कि क्षण कितना महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाने के लिए। एक क्षण पहले और एक क्षण बाद, और इस तस्वीर का कोई मोल नहीं था। वहीं पर उसी तत्क्षण, इंस्टेंटली, इफ यू कैन क्लिक, फॉर दैट यू नीड दैट कांस्टेंट अवेयरनेस, कांस्टेंट सीइंग, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तो कैमरा और उसकी जानकारी इतनी आवश्यक नहीं है, आपका एकाग्रचित रहना जरूरी है, आपका संसार में एक इंटरेस्ट रहना जरूरी है, आपका इस बंदर के बच्चे में रुचि होनी चाहिए, आप में करुणा होनी चाहिए, अरे यार ये क्या होगा, ये माँ इसको कैसे बचाएगी, आपके हृदय में कुछ होना चाहिए, स्फुरण होना चाहिए। देयर शुड बी सम टिंगलिंग इन यू व्हेन यू लुक एट द वर्ल्ड। तब आप उस फोटो को कम्युनिकेटिव बना पाएंगे। और आखिर में मैं एक देखने से बात शुरू की थी, पर मिर्जा गालिब का एक शेर है जो देखने पर है, उससे मैं बात को अल्प विराम देना चाहूंगा कि वाह कर दिए हैं शौक ने बंदे निकाबे हुस्न, वाह कर दिए हैं शौक ने बंदे निकाबे हुस्न, गरज निगाह अब कोई हाइल न रहा। कि मेरी जो इच्छाएं हैं उसने ब्यूटी पर से सारे पर्दे हटा दिए हैं, मेरे शौक ने सौंदर्य पर से सारे पर्दे हटा दिए हैं। अब एकमात्र जो बाधा रह गई है वो मेरी दृष्टि है, मैं जो देख रहा हूं सुंदरता को, संसार को, वो भी एक बाधा है। तो फोटोग्राफर शायद इस बाधा को भी पार कर पाए कभी। इस बात के साथ सर आपके लिए वापस। जी बहुत बहुत आभार हिमांशु जी, आपका पूरा व्याख्यान, मैं तो कहूँगा कि बहुत ही अद्भुत और धारा प्रवाह तरीके से आपने उस फोटोग्राफी की जो पूरी परंपरा है उसकी यात्रा हमें कराई। और मैं तो चूंकि आपके व्याख्यान कई बार सुनने का मौका मिला, तो आपके संग्रह में एक से एक सुंदर चित्र हैं जिन पर घंटों बात की जा सकती है। और आपने अपने विद्यार्थियों के साथ की भी है, कैसे एक फोटो को पढ़ा जाए, लेकिन यहाँ अपनी कुछ सीमाएं हैं, तो वो संभव नहीं हो पाया। और किसी और अवसर पर जब भी समय होगा तो उसके आगे की बात भी अपन करेंगे। तो जी निश्चय ही जिस धारा प्रवाह ढंग से आपने, क्योंकि मूलतः अंग्रेजी के आप विद्यार्थी रहे, लेकिन हिंदी में भी जिस तरह से आपने अपनी अभिव्यक्ति दी है, मुझे लगता है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिस तरह के मैसेज आ रहे हैं, वो बड़े अभिभूत हैं। इसके पहले कि अपन प्रश्नोत्तर शुरू करें, मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि आभासी मंच पे ही सारी चीज हो रही है, तो हम ई जी सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भी
इस विजुअल मीडियम से ही आपको प्रेषित करेंगे और बाकी व्हाट्सएप पर आपको भिजवा देंगे। तो ई सर्टिफिकेट और ई मोमेंटो। जी सर, बिल्कुल। ठीक है जी। The e-certificate and e-memento. For now, the e-memento is on the screen. Thank you for your gratitude, sir, the way you have shared your information and thoughts with us. We have your e-certificate as well. Let me share that. This is just an honor of gratitude and respect from our side, from Communication Today and BBI Camp. The e-certificate is on the screen. Thank you so much, sir. थैंक यू। Thank you. चलिए, सत्र चर्चा के लिए खुला है। जो भी मित्र अपना सवाल पूछना चाहे, कोई टिप्पणी हो, अपना नाम बताएं, परिचय दें और अपना प्रश्न पूछें या टिप्पणी करें। सर नमस्कार। हाँ सूरज जी। मैं सूरज देव प्रसाद, वर्तमान में विद्या विश्वविद्यालय मेरठ में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में सहायक प्रवक्ता के पद पे कार्य कर रहा हूँ। बहुत अद्भुत व्याख्यान रहा सर इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के ऊपर में, और निश्चित रूप से हम सभी का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं चित्रों और छवियों के बीच में ही सारा का सारा चीज गुजरता रहता है। निश्चित रूप से एक जो सवाल था सर, वैसे कि जो एक टेप्ड बनाना एक ऐसी वो फोटोग्राफ है या मतलब वो पेंटिंग है जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है, मतलब जो है, तो उसको थोड़ा सा बताएंगे सर कि वो टेप्ड बनाना करके है वो तो फोटोग्राफ है या मैं समझ नहीं पाया आज तक। कई बार उसको देखा कि जो है कि वो फोटोग्राफी का है, वो मतलब एक स्टिक फॉर्म या पेंटिंग का है जिसकी हाँ। कॉस्ट जो है मतलब जो है करोड़ों रुपए में ऐसा करके था सर। हाँ, ये जो ये पाश्चात्य कला जगत में जो चीजें घट रही हैं उसका एक उदाहरण है। जी। वहां पर कई सारे एब्सर्ड प्रयोग भी होते हैं, तो कई बार व्यंग भी होता है। तो ये एक कलाकार ने एक केले को गैलरी की दीवार पर चिपका दिया एक टेप से, और अच्छा। उसकी बोली लगाई और वो करोड़ों रुपए में बोली लगी और वो दीवार पे चिपका हुआ केला बिक गया। तो वो दरअसल एक व्यंग तो था ही कि कला की अभी कोई क्या परिभाषा क्या है, सौंदर्य बोध क्या है, उस सब का एक मजाक उड़ाने के लिए भी, और ऐसे भी कहा जाता है कि ये भी कला है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये कला नहीं है। तो एक एक वैचारिक बहस छिड़ने, बहस तो क्या, मुझे तो लगा एक संग्राम ही छिड़ गया जब एक केला दीवार पे चिपका रहा है और कोई उसको खरीद रहा है। तो ये हाँ। आधुनिक विश्व में विसंगतियां हैं, संगतियां हैं, जिनको हमें झेलना और मुस्कुराना होगा, ऐसा अच्छा, कह सकते हैं। इसमें सर जैसे कि आपकी भी फोटोग्राफ्स में देखा कि कई बार ऐसा लगता है कि जो फोटोग्राफर है उस मतलब अनायास, जैसे कई बहुत सारे इन्वेंशन हमारे बस इन्वेंशन हो गए, आविष्कार हो गए, ऐसे कई बार आपके भी जीवन में क्षण आया होगा कि आपने बस क्लिकिंग करी, फोटो खींची है, लेकिन कुछ ऐसा मास्टरपीस सा निकल गया कि वो अद्भुत था। तो इसमें क्या बैलेंसिंग, कितना प्रयास और कितना मतलब बस हो जाता है ऐसा मास्टरपीस निकल के आ जाता है सर? हाँ, ये बहुत कमाल का सवाल है, क्योंकि एज ए फोटोग्राफर 25-30 सालों में मैंने ऐसा अनुभव किया है कि ये आप इसको मेटाफिजिकल कहेंगे, आप इसको हाँ। पता नहीं क्या कैसे कहेंगे, पर यदि मैं विषय के प्रति बहुत मानवीय हूं, मैं बहुत जी। मन से वो फोटो ले रहा हूं, तो मेरा ध्यान तो शायद एक फूल पर ही होगा, उदाहरण जी। के लिए। हाँ। हाँ। परंतु जब फोटो खींच लूंगा और मैं उसको देखूंगा घर पे जाके या जी। डेवलप करके, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट्स आ गए होंगे उसको अद्भुत बनाने के लिए, जो मैंने सायास उसमें नहीं डाले होंगे। इफ आई एम taking a picture with utmost sincerity, some elements will enter on their ऑटोमेटिकली। own without my knowledge and enhance the beauty and communicability of that picture. This I have never been able to explain. This happens again and again, it happens. ये बार बार होता है कि हमारा ध्यान उस चीज पर ही होता है, परंतु उस फ्रेम में ऐसा कुछ घट जाता है जिसकी हमने प्लानिंग नहीं की होती। एक 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 छोटा सा और सर, बस थोड़ा सा आपके लाइफ से लेकर के कि जब जी। आप सर रील से जब फोटोग्राफी करते थे, कोडेक रील और तमाम जो रील का इस्तेमाल करते, बड़ा एक एक रील बड़ा कीमती सा होता था कि नहीं अभी क्लिक करें, नहीं क्लिक करें क्योंकि वेस्ट ना हो जाए। और आज जब डिजिटल
दुनिया में हर एक हाथ में फोन हो गया, मतलब एक फोटोग्राफी का टूल कैमरा हो गया, और लोग रोज कम से कम जो है 50, 100, 500 फोटो ऐसे क्लिक 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 करते कर लेते हैं। तो उन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस आप जो पर्सनली महसूस करते हो, जो डिजिटल एरा आज की फोटोग्राफी और जो रील वाली थी, उसके बीच में एक संवेदना के स्तर पे थोड़ा सा सर, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि फोटोग्राफी देखने से बहुत संबंधित है। हमारा पूरा व्याख्यान हमने इसीलिए इस तरफ लिया जी 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 सर। कि अगर देखने की संस्कृति, देखने का धैर्य हमारे अंदर है, तो फोटो बेहतर होगा। इसीलिए आज भी जब हम फोटोग्राफी पढ़ाते हैं, तो जी सर। करीब-करीब सारे ही फोटो वो होते हैं जो रील के दुनिया में लिए हुए हैं। पिछले 25 साल के लिए हुए बहुत कम फोटो ऐसे हैं जिनको हम एक उदाहरण के तौर पे पढ़ा पाते हैं, एकदम या सही उनकी बात है। आयु इतनी नहीं लगती। तो एक जो धैर्य था, और वो धैर्य कंपैशन से आता है। मतलब मैं इसके अलावा और कोई बात कह ही नहीं सकता कि आप सही में जो संसार के प्रति करुणा और कंपैशन है, उसी से धैर्य आता है। माँ में बच्चे के प्रति जो धैर्य है, वो करुणा से है, उसकी ममता से है। फोटोग्राफर में विषय के प्रति जो धैर्य है, वो कंपैशन से ही आएगा। उसके बिना फोटो जर्नलिज्म एक यांत्रिक चीज बन जाएगी और विषय एक कंटेंट बन के रह जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू अच्छा सर। हिमांशु जी, कभी ऐसा भी हुआ कि 2 घंटे आप बैठे रहे और मालूम पड़ा एक भी फोटो क्लिक नहीं हो पाया ढंग का? इसीलिए वो फोटोज मैं आपको दिखा भी कहाँ पा रहा हूँ जो क्लिक भाई ये अनेकों बार हुआ है। मैंने अभी पिछली बारी जो सिम्बायोसिस में मेरी कक्षा थी, हाँ तो हाँ। मैं विद्यार्थियों को डिस्करेज करने के लिए नहीं, उनको अच्छी फोटो का महत्व बताने के लिए मैंने कहा कि मेरे 22 साल के फोटो जर्नलिज्म कैरियर के अंदर मेरे पास 22 ही तस्वीरें हैं, जो मैं कह सकता हूँ कि मेरे मन की है या जो मैं आपको आज दिखा सकता हूँ। वो मैं उसमें जो एक धैर्य, एक जो कठिनाई, एक समय छुपा हुआ है अच्छी तस्वीर लेने में, उसकी ओर ध्यान ले जाना चाहता हूँ। जी। क्योंकि सर, जैसे वो मनमोहन सिंह जी वाला है, वो तो भाई चांस की बात है, हो सकता है कुछ नहीं होता उस तरह का वहाँ। हाँ, पर उसके अंदर है कि लिटरली हमको वो जो बल्ली फंटे लगे होते हैं, हाँ 50 हाँ। मीटर दूर, उसके ऊपर ऐसे कोहनियाँ टिका के बस ऐसे सवा-सवा घंटे तक हम बैठे रहे हैं। और ये अच्छा। सच बात है कि पसीने की आँख में आती है और मुँह के अंदर चली जाती है, और हम कैमरा नहीं हटा सकते, क्योंकि वो क्षण चला जाएगा। तो ये सच बात है, पर उसमें तस्वीरें मिलती हैं। एक सवाल इधर है आपके चैट बॉक्स में चैट सर, बॉक्स में, हाँ पढ़ दीजिए ये आप। पी सुधाकर सर का है। सर, कैन फोटोग्राफी सर्वाइव इन द शैडो ऑफ वीडियो इमर्जेंस बिकॉज वीडियो हैज विजुअल फीस टू व्यूअर? हाँ, ये अच्छा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं अंग्रेजी में आंसर दूं इसका? शुड आई आंसर इन हाँ हाँ इंग्लिश? हाँ। हाँ, yeah, that's a very valid question, and in fact I was thinking about it this afternoon while preparing the lecture. Even though videos are taking precedence over photography, I would like you to remember the last video which you watched, and you will see that you remember a still frame from the video. You do not remember the full video. वीडियो के अंदर भी हम हमेशा एक छवि याद रहती है, एक रुका हुआ दृश्य याद रहता है. So if your video has good frames, then it has more chances of recall. वो लोगों को ज्यादा याद रहेगा. And having a good frame requires knowledge of photography, requires knowledge of a still picture, requires knowledge of good composition. That's why Andrei Tarkovsky's films are beautiful, because they are very photographic. Manikol, Satyajit Ray. Satyajit Ray's inspiration was Henry Cartier-Bresson, of whom we have talked just now. All his movies, videos, if you can call them videos, all the moving frames were inspired from a still photographer. So making a good reel, making a good video requires knowledge of a good still photography. So we have one more question from Paris Joshi sir. Himanshu Vyas sir, can you please provide your contact information? As I'm doing my research on photography journalism and your guidance, we will be sharing valuable
very valuable for me. Yeah, sure. Definitely, sir. I guess this is all. I just typed it in the chat box, and also my Instagram ID is also there. Devakar sir quoted that he is a big fan of yours, and Thank you. yeah, ने किसी को बताया नहीं है. Shukriya. So I've written down my mobile and Instagram ID. You are free to call me, contact me anytime. I'm a photojournalist, 24 hours at work. चलिए साहब, और कोई सवाल? I guess Surinder sir have. सर नमस्कार। जी नमस्कार सुरेंद्र जी। सर सबसे पहले तो जब आप क्लास पढ़ा रहे थे तो मुझे भी अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आ रही थी, और मुझे याद है कि रवीश कुमार अपने ब्लॉग लिखते थे, कस्बा नई सड़क करके उनका URL है, तो उसमें एक लाइन मुझे आज भी याद है, उसमें लिखा था शौके दीदार है तो नजर पैदा कर। तो इतनी शानदार लाइन थी कि जब भी हम विजुअल्स को कैप्चर करने के लिए सोचते थे तो वो लाइन याद आती थी कि यदि आपके पास नजर है तो आप अच्छे से अच्छे विजुअल्स को कैप्चर कर सकते हैं। और अभी जब आप अभी बता रहे थे कि स्टिल फोटोग्राफी का क्या इम्पैक्ट होता है जब हम विजुअल्स को देखते हैं, तो हाल ही मैंने एक फिल्म इजाजत फिल्म देखी, क्योंकि मैं रेडियो में हूँ तो उसमें गाने बहुत अच्छे हैं, तो वो फिल्म देख नहीं पाया था, तो अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने उस फिल्म को देखा। और फिल्म पूरी की पूरी स्टेशन पर है कि उसकी लाइफ पूरी एक स्टेशन है और उसमें एक रूम है, उस पे डायलॉग्स हैं, साइलेंस है, और जब हम विजुअल्स की बात करते हैं कि जब स्टिल की बात करते हैं तो डायलॉग बोल के वो भावना रुकती है लंबे लंबे समय के लिए। बिल्कुल। इस तरह की जब आप मूवी देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसके डायलॉग्स, उसकी जो छवि है वो मतलब लंबे समय तक रहती है। और मुझे याद आ रहा है कि जब मैं कॉलेज कंप्लीट करके मैं टीचिंग में आया इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में, तो गांव कनेक्शन एक न्यूज़पेपर लखनऊ से स्टार्ट किया था नीलेश मिश्रा, RG नीलेश मिश्रा जी। तो मैं बड़ा उत्सुक था कि कैसे न किस तरह से इस न्यूज़पेपर से जुड़ूं। तो कई बार मैंने इनको मेल लिखा, कई बार फोन करने का कोशिश की, तो जब मैं ज़्यादा पीछे पड़ गया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास लगभग सब कुछ कंप्लीट है, एक जॉनरे है जहाँ पे हम आपको यूज कर सकते हैं, वो है आप रूरल इंडिया के कुछ अच्छे विजुअल्स हमें भेज सकते हैं, हमें अच्छे लगे तो हम आपके विजुअल्स को एडिटोरियल पे स्थान देंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए कि जहाँ ओम थानवी साहब लिखते थे, जहाँ रवीश कुमार जैसे लोगों के इसमें कॉलम आते थे, और उसी पेज पर मेरा एक फोटो, मतलब DC फोटो मेरा उस पर जी। और उसका इम्पैक्ट ये था कि जब मैं भारतीय विद्या भवन में था, बाडकर सर हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो हमें क्लास में कहते थे कि किसी घर में शादी है तो आप यहाँ से कैमरा इशू कराएं और उसमें ले जाएं, फोटो खींचे। आपके यहाँ बर्थडे पार्टी है तो हमारे विजुअल वीडियो कैमरा ले जाएं, उसको शूट करें, उसे देखें कि कैसा काम किया आपने। तो जो फ्रीडम हमें कॉलेज से मिली उसका इम्पैक्ट रहा कि मैं गाँव जाता था और फोटो खींचता था, और फिर वो सेलेक्ट जो मुझे अच्छे लगते थे, वो उन्होंने एक बार एक हमारी क्लास ली और कहा कि पहले आप खुद देखो कि आपको ये फोटो अच्छा लग रहा है, यदि आपको फोटो अच्छा लग रहा है तो फिर आप हमें भेजें। तो इस तरह से बिल्कुल फोटोग्राफी का असली प्रशिक्षण घरों से ही शुरू हो जाता है। आप घर में जो तस्वीरें लेते हैं उनको भी कैजुअली ना लें, उनको भी एक उसके अंदर रस होना चाहिए, उनके कंपोजिशन में वहां पर भी क्षण होने चाहिए। बर्थडे का फोटो है तो भी फूंक जब बच्चा दे रहा है और मोमबत्ती आधी बुझी है, वो फोटो ले पाए तो वो कम्युनिकेबल होगा। फिर देखिए कैसे सारे वो फोटो फॉरवर्ड होती है घर के सारे ग्रुप्स में, और सारे अंकल आंटी उसको लाइक करते हैं। पर वो एकाग्रता बहुत जरूरी है। फोटोग्राफी बहुत बहुत गतिशील कला है। आपको व्यक्ति को उसके स्तर पर उठना होता है। जी बहुत शुक्रिया सर। नहीं हिमांशु जी, जो आपने बात कही ना कि वो जो बच्चा हॉस्पिटल से ही जो उसकी दृश्यात्मक शक्ति है,
तो हाँ। वो मैं महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात को कोरिलेट करते हुए। अभी मेरी बिटिया का बेटा 10 महीने का है। जी। अब घर में एंट्री के साथ वो जिस तरह से स्माइल पास करता है ना? कोई अक्षर ज्ञान नहीं है उसके पास, लेकिन हाँ, केवल देख रहा है और जो स्माइल पास कर रहा है या हाँ, आपके हाँ, पास आने के लिए मचल रहा है, हाँ, यही शायद उसकी ताकत है। और मैं भी हाँ, कोशिश करता हूँ कि कैमरा हाथ में रखूं और इन मोमेंट्स को आप कैप्चर कर लें। वो जो बिल्कुल, आपने बिल्कुल। जिस गहनता से पूरे परिवेश को रेखांकित किया है, मुझे लगता है अद्भुत है। मैं पर आपको कभी एक और लगता है कि एक बहुत कैमरा नहीं, हमारे आंखों में मतलब कैमरा होना चाहिए, हाथों में नहीं, बिकॉज वो होल्ड फिर वो हट जाएगा, इन अ चला जाएगा। तो इट फील्स लाइक कि मैं अपनी आंखों में उस मूवमेंट को कैप्चर कर लूं। मतलब सर ने बेबी के बारे में बताया तो इवन आई थॉट ऑफ इट। मैं आपको एक बहुत जल्दी से एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ जो देखने से संबंधित है ना? मैं सच में चाहता हूँ कि जो भी फ़ोटोग्राफ़ी की बात करे, फ़ोटो जर्नलिज़्म की, वो पहले देखने की बात करे, वो आँखों की बिल्कुल। बात करे। हमारा अनुभव है कि देखिए आप मान लो स्कूटर पे जा रहे हैं, हुँ? और पीछे कोई बैठा है। मान लीजिए पति-पत्नी जा रहे हैं, भाई-बहन जा रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं 2 और बगल वाले स्कूटर पे एक पति-पत्नी जा रहे हैं, हुँ? और आप थोड़ी देर साथ में चल रहे हैं। अभी देखिए यहाँ घटना शुरू होती है। जो मान लीजिए पीछे पत्नी बैठी है और उसके कंधे पर एक 2 ढाई साल का बच्चा है, हुँ? और वो थोड़ा-सा आपको ओवरटेक करते हैं और बच्चे की आँख आपसे मिल जाती है। ढाई साल का बच्चा है और आप देखिए वो बच्चा सब कुछ छोड़ के आपकी आँखें देखना शुरू कर देता है और जब तक वो भीड़ में गुम नहीं जाता, उसकी आँखें आपको ढूँढती रहती है। वो जो आँख मिलने से एक संबंध बनता है, वो जो एक दृष्टि का देखने का एक सुख है, वो बहुत नैसर्गिक है, वो बहुत गहरा है और हमारा भी ध्यान उससे हटता नहीं और आखिर में हम शायद उसको टाटा करेंगे। बिल्कुल। वो जब वो फाइनली जब वो स्कूटर हमारी आँख से ओझल हो जाएगा, तो माँ-बाप को हम नहीं जानते, पर उस बच्चे को हम उस 15 सेकंड की दोस्ती के लिए बाय-बाय करेंगे और वो देखने से संभव होता है। तो ये मैं सारी यहाँ पे चीज़ें मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा इनपुट डालना चाहूंगा सर कि मैं अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ जब कहीं बाहर जाता हूँ घूमने के लिए, तो मैं वहाँ फोटोग्राफी खूब करता हूँ, खूब फोटोज खींचता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं, हमारे घर वाले कहें कि ये तो बस फोटो खींचते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हम जब यहाँ से वापस आएंगे तो यादों में तो चलो चीजें रहेंगी, लेकिन उस क्षण को, वो जो मोमेंट्स है उसकी क्लिकिंग, वो जो बाद में हम 5 साल हाँ, बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कि हम वहां गए थे, मुझे लगता है कि ये जो फोटोग्राफी ने टाइम को, जैसे लगता है ना कि वो कैद कर लेता है सर। मतलब फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये जो जो हमारा इन्वेंशन हुआ, इसने टाइम को होल्ड करना सिखाया सर। हाँ। होल्ड कर देता है पिक्चर को, उस टाइम को वहीं पे फ्रीज कर देता है, इस तरह से ऐसा नहीं लगता सूरज है। जी, मैं दूसरी बात कहूंगा, यही बात मैं हिमांशु से शेयर करना चाहता था। जी सर। हिमांशु जी, जैसे इन्होंने कहा फैमिली के साथ सर, वो कहते हैं फोटो ही खींचते रहते हो। हाँ यहाँ पे हाँ। झगड़ा इस बात पे हो जाता है कि आप ये जो एक्चुअल चीज है इसको एंजॉय करो, कहाँ फोटोग्राफी में पड़े हो। आप उस माहौल को एंजॉय करो, एक पक्ष वो भी है। हाँ, दरअसल हमें करना ये चाहिए, अगर हमारी आँखें सजग है, तो हम हाँ, एक एक वो तस्वीर ले लेंगे जो काम की है, फिर कैमरा रख देंगे। सही बात बिल्कुल। फिर हम उस जो घटना हो रही है उसके अंदर एक मनुष्य की भांति सम्मिलित हो जाएँगे। सही बात है। है। जी, चलिए साहब, और कोई सवाल? चलिए साहब, मुझे लगता है बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया है हमने आज विश्व फोटोग्राफी हाँ, दिवस, जी, जी, जी। हिमांशु जी को सुन के। और आपने फोटोग्राफी के बारे में जिस तरह से एक आई ओपनिंग लेक्चर दिया है, मुझे लगता है बहुत सारे नए फोटोग्राफर तैयार होने चाहिए। और अब आभार प्रदर्शन के लिए एक बार प्रियंका जी फिर। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। It's my privilege to extend a heartfelt vote of thanks to everyone who made this enlightening session possible. On behalf of BBI CAM and Communication Today, New Delhi, I express our deep gratitude to our distinguished speaker, respected faculty members, and all the participants for their valuable input. The discussion basically highlight how photography transcends mere image capture. It tells stories. जिस तरीके से हमने सारी चीजें कैप्चर किया, सर ने बताया कि फोटोग्राफी हमेशा एक व्यू पॉइंट से स्टार्ट होता है। इसका जो ओरिजिन है वो 19th सेंचुरी में हुआ था। अ, हमारे जब फोटोग्राफी का ओरिजिन हुआ तो हमने इनिशियली ये चीजें आइडेंटिफाई किया। सर ने वो हॉर्स की फोटोग्राफी को कैप्चर करने का बताया। फोटोग्राफी इज नॉट ओनली अबाउट कैप्चरिंग अ मूवमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट कैप्चरिंग अ एक्शन,
सर ने इस चीज को हाईलाइट किया. When we explore photography and its role in journalism, it includes branding, it includes social movements, it includes visual storytelling. बहुत बारी ऐसा होता है कि हम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते और फोटोग्राफी बोलते हैं. सर ने ये बताया. ऑफ कोर्स सर को बहुत सारी सिचुएशंस पे ऐसा हुआ होगा कि हमने कुछ मेंशन लिखा नहीं, लेकिन फोटोग्राफी कुछ ऐसी चीजों को प्रेजेंट करता है जो हम लिख ही नहीं सकते, और उस पे हमेशा एक चैलेंज होता है, वो एक फोटोग्राफर के लिए, वो एक जर्नलिस्ट के लिए. तो वो कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें बेयर भी करने पड़ते हैं. एज अ सिंगल फोटोग्राफ कैन डॉक्यूमेंट हिस्ट्री, हाईलाइट social issue, perceive or preserve culture and heritage and create public awareness. जिस तरीके से हम लोगों ने जिक्र भी किया कि बहुत बारी ऐसा होता है, वी आर इन अ डिलेमा कि क्या हमें इसे फोटोग्राफ से कैप्चर करना चाहिए या हम उसे व्यू करें और अपनी आंखों में इस चीज को भरे. तो ये एक डिलेमा है जो कहीं ना कहीं हमें ये कर लेना चाहिए. सर ने भी बताया कि हाँ, हम एक दो फोटोग्राफ्स ले लिया और उसके बाद उसे एंजॉय करें, देखें. बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस मूवमेंट को जीने के बजाय ना, मतलब हमेशा जीने पे बिलीव करती हूँ फोटोग्राफी से ज्यादा. बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि हमें फोटो ले लेनी चाहिए थी. एक हेजिटेशन भी होता है व्हाइल टेकिंग फोटोग्राफ्स. हम उस मूवमेंट को आंखों से जीते हैं ना, तो कोई मतलब किसी ने जजमेंट नहीं पास किया. बट व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी, वहां पे एक जजमेंट पास होने का भी डर रहता है. सो एज अ जर्नलिस्ट we have not to be hesitate for anything. अगर फोटो लेनी है तो लेनी है, because we are capturing one moment, we are capturing one situation, we are capturing one action, and we are capturing one complete movement. और वो बाद में हम उस चीज को मेमोराइज कर सकते हैं थ्रू फोटोग्राफ. आई गेस फोटोग्राफ इज कंसिडर टू बी अ टूल ऑफ कीपिंग थिंग्स मेमोराइज. हम इसे एक टूल कंसीडर कर सकते हैं, एक वेपन कंसीडर कर सकते हैं किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए, किसी भी चीज को वापस से यूज करने के लिए. एक एविडेंस के लिए भी फोटोग्राफी एक अच्छा टूल कंसीडर होता है. किसी भी चीज को कोट करने के लिए या किसी भी सिचुएशन को वापस से रिकॉल करने के लिए. तो फोटोग्राफी इज डेफिनेटली अ पावरफुल टूल for those things also. In closing, I would like to give special thanks once again for sir. Sir ने जिस तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल्स के साथ, कोटेशन के साथ, स्टोरी टेलिंग के साथ, एक छोटी सी कहानी के साथ. तो आई गेस हम इस सेशन को कभी नहीं भूलेंगे. फोटोग्राफी के लिए अगर हम कहीं जाएंगे तो इनिशियली हम कोशिश करेंगे कि हम फोटोग्राफ्स भी लें और उसे एंजॉय भी करें आंखों से देखकर. तो सर ने वो इनपुट हमें दिया. स्पेशल थैंक्स टू बनावत सर एंड एमएन हुर्रे सर, बिकॉज दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर. और हमेशा इनकी वजह से हम नए नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, नए नए और अच्छे लोगों को सुन पा रहे हैं. उनकी नॉलेज से हम अपनी नॉलेज में भी एक एडिशन लेकर आ रहे हैं. सो थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर देयर इनपुट्स, फॉर देयर वैल्यूएबल टाइम. चलिए साहब, एक सूचना, हमारा अगला वेबिनार 24 अगस्त को है और उसमें हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर एस अरुल चेलवन श्रीराम. ये हेड हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई के और डायरेक्टर है एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर के. और विषय उन्होंने दिया है विनिंग माइंड्स विनिंग वोट्स, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कैंपेन स्ट्रेटजीज. तो आप सभी से अनुरोध है कि 24 तारीख को समय भी यही है और लिंक भी हमारा यही है, इस पर आप जुड़ें. और हिमांशु जी ने अनाम दास की पोथा की बात की थी. हजारी प्रसाद द्विवेदी के चारों उपन्यासों पे मेरा डिसर्टेशन है. अरे तो मुझे तो अच्छा. बहुत याद आने लगी, चाहे वो बाणभट्ट की आत्मकथा की बात हो, वहां से हाँ, लेकर रामदास का पोथा. तो चारू चंद्र लेख. हाँ, चारू चंद्र लेख और एक और था उनका. तो 4 हाँ. उपन्यास या सन 80 की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात जी है. सर जी. और उस पर बाद में राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल गया था, प्रथम कृति पुरस्कार. वाह वाह. तो आपने उस बहाने हजारी प्रसाद जी की याद दिलाई. और जब शांति निकेतन गए थे तो हजारी प्रसाद जी का और डिपार्टमेंट भी, मैं हिंदी विभाग में थे वहां लंबे समय तक. वो जी सर जी सर. रविवार था तो बंद था, तो बाहर ही फोटो खिंचाई, है ना. तो लेकिन यह है कि उसका मुझे लगता है कि वो जिस तरह का एक दार्शनिक टच दिया उन्होंने, तो सामान्य पाठक के लिए थोड़ा सा वो है, लेकिन बड़ा रोचक तरीके से लिखा गया है. हाँ. है ना. तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर अपन 24 तारीख को. हिमांशु जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने समय दिया इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच, क्योंकि आज आपके और भी इवेंट्स थे, लेकिन इस विषय के प्रति जो आपका लगाव और जुड़ाव है वही शायद आपको यहाँ खींच के लाया है. और ऑलवेज अ प्लेजर सर, ऑलवेज अ प्लेजर. थैंक यू. जिन पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, प्रियंका जी 5-7 मिनट हैं अभी, और वो सर्टिफिकेट में हेल्प कर देंगे. बाकी जिनको सर्टिफिकेट मिल